And it hurt me because I wasn't able to let them know that I was gonna get deported, and I didn't even know that I was gonna get deported until I was on the plane. And Annie, I'm so sorry. And the thought that comes to mind for me is that, you hear Donald Trump and all these people say over and over they're going after the worst of the worst. But you're a college freshman from Babson who was there on a scholarship. वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल। और आज का जो केस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, ये अमेरिका में नेशन वाइड इसके बारे में चर्चा हो रही है। 19-year-old एनी लोपेज ये थैंक्स गिविंग के दौरान बॉस्टन से अपने घर टेक्सास वापस जा रही थी अपने पेरेंट्स को मिलने, लेकिन एयरपोर्ट पर ही आइस ने इनको डिटेन कर अभी हॉन्डुरस डिपोर्ट कर दिया है। फेडरल जज का जो ऑर्डर था उसको नजरअंदाज करते हुए ये डिपोर्टेशन कैरी आउट की गई और अब इनको हॉन्डुरस से अमेरिका वापस लाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दोस्तों ये आप जब वीडियो देखोगे ना, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि यार फैमिली सेपरेशन की इससे बड़ी एग्जाम्पल आपने नहीं देखी होगी। I was like, when I got here, my immediately instinct told me to call my parents, and thank God I was able to and let them know. Mom, like, I was like, Mom, I got deported. I'm here. And she was like, it's okay, it's okay. She was just like, it's okay. We already knew. We found out. Everything's gonna be fine. And it hurt me because I wasn't able to let them know that I was gonna get deported, and I didn't even know that I was gonna get deported until I was on the plane. And Annie, I'm so sorry. And the thought that comes to mind for me is that, you hear Donald Trump and all these people say over and over they're going after the worst of the worst. But you're a college freshman from Babson who was there on a scholarship. Your dad works in a tailor shop in Texas. He was so proud of you when you got in to go to school there. He ran in and was telling everybody, according to reports I read, about how ecstatic he was and how much he loves you. अभी तक मैं काफ़ी ज़्यादा केसेस को आप लोगों के साथ शेयर करते आया हूँ किस तरह से कैरी आउट किया जा रहा है डिपोर्टेशन। देखो, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि हम वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट क्रिमिनल्स को डिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसे केस देखने को मिलते हैं ना दोस्तों, तो लगता नहीं है कि वो जो कह रहे हैं वो कर भी रहे हैं, क्योंकि ये एक टीनेजर, यार ये तो एक तरह का चाइल्ड अब्यूज हो गया दोस्तों, कि जो अपनी फैमिली को मिलने जा रही थी, फेडरल कोर्ट का ऑर्डर था कि इनको डिपोर्ट ना करें, फिर भी इनको हॉन्डुरस डिपोर्ट कर दिया गया। Are you a criminal? Are you the worst of the worst? no. What do you want Donald Trump to know if the president is watching this interview and he sees that his Department of Homeland Security just picked up a college freshman from Babson who was studying business and, wanted to have a bright future ahead of her in the United States? What do you want the president to know? That not all of us are criminals. That many of us come here to be able to work, be able to live a better life from our countries. Many of us want to just work and provide for their families. We are here also to go to college because we want a better education. We just want a better kind of lifestyle. But not all of us are criminals. And he says that all of us are criminals. He's extremely wrong, because many of us just want a better life with an education, a job. इनका फुल नेम है एनी लूसिया लोपेज बेलोजा। ये 19-year-old है। ये 7 साल की उम्र में अमेरिका आ चुकी थी मैक्सिको के बॉर्डर से।
DHS का कहना है कि 2014 में इनका असाइलम का केस लगा इनकी फैमिली के साथ, ये तो बच्ची थी, और उसके बाद 2015 में इमिग्रेशन जज ने इनको रिमूवल ऑर्डर दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये 10 साल अमेरिका में ही रहे। और अब थैंक्स गिविंग के टाइम जब इन्होंने बॉस्टन से अपने घर अपनी फैमिली को मिलने के लिए टेक्सास में जाना था, तो बोर्डिंग के दौरान इनकी टिकट, इनको बोला गया कि आपके टिकट में कोई दिक्कत है तो आप कस्टमर सर्विस के पास जाएं। तो जब ये वहाँ जाती हैं तो आगे देखती हैं कि आइस एजेंट खड़े होते हैं। वो इनको कहते हैं कि आपको कुछ पेपर्स फिल आउट करने हैं और आप फ्लाइट बोर्ड नहीं कर पाएंगी। ये डर गई, इन्होंने कोऑपरेट किया, ये चले गई और वहीं से इनको हॉन्डुरस डिपोर्ट कर दिया गया। इनके लॉयर ने कहा कि फेडरल जज का ऑर्डर था कि इनको आउट ऑफ स्टेट या फिर आउट ऑफ कंट्री डिपोर्ट ना किया जाए, कोर्ट हेयरिंग में एक मौका दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आइस ने इनको इनकी कंट्री वापस हॉन्डुरस में डिपोर्ट कर दिया। अब इनके जो लॉयर हैं उनका कहना है कि हम अब कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे पिछला एक केस आया था, गार्शिया का एक केस था, उसको भी वापस लाया गया था, अब इनको भी उसी तरह से अमेरिका में वापस लाया जाएगा अंडर ड्यू प्रोसेस। अब ड्यू प्रोसेस क्या है दोस्तों, क्योंकि जब इनको रिमूवल ऑर्डर लगा था ये बच्ची थी, ठीक है, और जिस तरह से आइस ने इनको डिटेन किया, इनके लॉयर का कहना है कि ना इनको कोई वारंट दिया ना कुछ बताया, मतलब एक तरह से किडनैप भी कर लिया। तो ये सब जो चीज़ें हैं, खास करके जो फेडरल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसका वायलेशन आइस एजेंट्स ने किया, तो अब कार्रवाई लंबी चलेगी और इनको अमेरिका वापस लाया जाए। The rule of law was violated. A federal judge issued an order not to deport her from the country to give her her day in court, and they're being so brazen about it. They're effectively claiming that the judge had no authority to even issue the order, so they deported her anyway. अब देखते हैं कि इस केस में आगे हमें क्या देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा दुखद भरी चीज ये है दोस्तों कि ये एक कॉलेज स्टूडेंट बैप्सन कॉलेज में बॉस्टन में ही पढ़ती हैं, वहां से थैंक्स गिविंग के लिए अपने घर वालों को मिलने जा रही थी। अब ऐसा तो है नहीं कि पिछले 10 सालों में ये पहली बार मिलने जा रही थी, काफ़ी कॉलेजेस इन्होंने अटेंड किए होंगे, मतलब स्कूल गए होंगे, काफ़ी बार एयरपोर्ट में गए होंगे, फ्लाइट्स ली होंगी, लेकिन ये ऐसा कुछ इनको अब देखने को मिल रहा है, पहले नहीं था। और आप जब इनका इंटरव्यू सुनो तो यार वाकई में यार लगता तो नहीं है कि ये क्रिमिनल है, लगता तो ये है कि ये एक ड्रीमर है। ये पढ़ रही हैं, इनको बिजनेस करना था, फैमिली बनानी थी, इन्होंने खुद कहा इंटरव्यू में, तो कहीं पर भी हमें ये वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट क्रिमिनल तो नहीं लग रही। लेकिन फिर भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, आइस एजेंट्स ने इनको कार्रवाई के बिना, फेडरल जो जज हैं उनके ऑर्डर के बिना डिपोर्ट कैसे कर दिया। अब ये लड़ाई खड़ी हो गई है। You feel hopeful that you'll be able to get back here soon and be with your family again? Yes, I am very hopeful that I can go back and see my family. Maybe the last thing I'll just ask you is, what are your hopes for the future? My hopes for the future is to first see my family, be able to hug them, and also be able to finish my college. And from there, since I don't know, be able to open up a business, which it was my dream, and try to live a better life. दोस्तों अमेरिका में काफ़ी अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं और ये सबको मालूम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग क्रिमिनल हैं, वो मर्डर नहीं कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक बेटर लाइफ के लिए, एक ड्रीम है। अब हो सकता है कि कोई बचपन में ही बॉर्डर क्रॉस करके अपनी फैमिली के साथ आया हो, अब इनका केस वही है। अब बच्चे को क्या मालूम कि यार क्या चल रहा है, और इनको मालूम ही नहीं था कि इनको रिमूवल ऑर्डर लग चुका है, जिस तरह से इन्होंने इंटरव्यू दिया। सो अब एक तो ये है टीनेजर, 19 ईयर्स ओल्ड, अंडर 21 की एज में आती हैं। दूसरा, जब इनको मतलब डिटेन किया गया, कुछ बताया नहीं गया कि क्यों किया जा रहा है, इनको बोला गया पेपर साइन कर दो, और उसके बाद किस तरह से फेडरल जज का जो ऑर्डर था उसको भी नेग्लेक्ट करके डिपोर्ट कर दिया गया फटाफट, जैसे कि बड़ा कोई पता नहीं कितना बड़ा क्रिमिनल है, कोई पता नहीं कंट्री बर्बाद कर देनी थी। अब यही मुद्दा नेशन वाइड सोशल मीडिया पर इनके जो लॉयर हैं ये उठाया जा रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इनको वापस लाए। और एक बात सही भी है यार कि चलो माना कि आप वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट क्रिमिनल्स को पकड़ रहे हो, बिल्कुल सही है,
लेकिन जब ये ऐसे कुछ केसेस देखने को मिलते हैं ना दोस्तों, तो ऐसा लगता है कि यार ये वो अमेरिका नहीं है जहाँ पर लोग अपनी ड्रीम में जीने आते थे, जहाँ पर लोग हार्डवर्क करते थे। अब हो सकता है यार किसी के पेपर बन गए हैं, किसी के नहीं बने हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि जिसके पेपर नहीं बने वो क्रिमिनल है। क्रिमिनल तो वो हुआ ना जो सच में बंदे मारा है। इनसे जो रियल क्रिमिनल हैं इनको इन्होंने ऐसे छोड़ा हुआ है। आपने वो केस देखा जो शिकागो में ट्रेन में लड़की को जला दिया? जिस बंदे ने जलाया उसके ऊपर पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड था, वो ऐसे घूम रहा खुला। और जो ऐसे लोग हैं जो स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ड्रीम लेकर चल रहे हैं कि भाई अपनी लाइफ बेटर करनी है। देखो दोस्तों, जब अपनी लाइफ बेटर करने की बात आती है तो मतलब देश बेहतर होगा आगे जाकर। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिकन लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा और वो भी आवाज़ उठा रहे हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा ना करे। आपको पकड़ना है, आप वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट क्रिमिनल्स को पकड़े हैं, कोई नहीं बोल रहा कि अब। लेकिन ऐसे लोग जब सामने देखने को मिलता है दोस्तों, ये है फैमिली सेपरेशन। आपको पता है लोगों की ज़िंदगी में अब इनकी फैमिली और इनकी लाइफ में इनको भी समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना है। मतलब किस तरह से इनकी लाइफ में एक यू टर्न सा आ गया कि यार ये क्या हो गया। और हालांकि एक तो हो ना कि भाई इन्होंने बड़े कोई क्राइम किया है, ऐसा तो है नहीं दिख रहा है। 7 साल की थी जब ये अमेरिका में आई, 10 साल से अमेरिका में रह रही थी। अभी 19 ईयर्स में आकर इनको एयरपोर्ट में बोर्डिंग करते वक्त, तो भी थैंक्स गिविंग वाले दिन जो हॉलीडे सीजन है, इनके साथ ऐसा हो जाता है। और आपने वो देखा किस तरह से ये रोई हैं वो। दोस्तों ये रियल इमोशन है। जब मैं इनकी वीडियो देखा ना, मुझे रोना आ गया यार कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो लॉज होने चाहिए, बिल्कुल सही है, इम्प्लीमेंट होने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है जो अच्छे लोग हैं, जो अपना और देश का बेहतर करना चाहते हैं, उन्हीं की ज़िंदगी खराब हो जाए। तो यार इस वक्त ना आप कोई भी केस लगा लो, अब चाहे आप लीगली आए हो या इलीगली आए हो, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा मकसद है कि आपको डिटेन करें और डिपोर्ट करें। अभी हम बात करें ग्रीन कार्ड पर जो लोग जा रहे हैं, जैसे अगर आपका स्पाउस यूएस सिटीजन है, आप ग्रीन कार्ड इंटरव्यू पे जा रहे हो, उनको डिटेन कर रहे हैं। जो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके आए, आप केस देख ही रहे हो, उनको तो वैसे नहीं छोड़ रहे। जो लोग H1B वीज़ा पर आना चाहते हैं उनको टाइट कर दिया कि हाँ हटाओ, बंद करो। जो स्टूडेंट वीज़ा है उस पर सख्ती हो गई है, घटा दिए गए हैं। तो आ जाके अल्टीमेटली ना अमेरिका के अंदर ही काफ़ी उथल पुथल हो रहा है, जिसमें लोग खुश नहीं हैं। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो यूएस सिटीजन है उसकी फैमिली मेंबर में कोई ना कोई तो ऐसा ज़रूर होगा जिसका पूरे पेपर नहीं होंगे, जो अनडॉक्यूमेंटेड होगा, तो उससे यूएस सिटीजन भी इम्पैक्ट हो रहा है। यूएस सिटीजन को भी लग रहा है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक गोरी को मिला, दोस्त है, उसको मिला, और वो मैं सच कह रहा हूँ, वो रिग्रेट कर रही थी कि मैंने ट्रम्प को वोट दे दिया। वो रिग्रेट करी। मैंने पूछा भी नहीं दोस्तों उनसे, वो अपने आप ही ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो हो रहा है उसने बात करना शुरू कर दिया। मतलब उसके अंदर ना अमेरिकन लोग बहुत अच्छे हैं यार, उनका दिल एकदम साफ होता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो ये आवाज़ उठाते हैं। तो जब मैं देखा ना, जब उस गोरी को देखा, मैं उससे बात किया, तो वो इतनी अंदर से मतलब उसको गुस्सा था कि अगली बार मैं वोट नहीं डालने वाली रिपब्लिकन पार्टी को, क्योंकि इन्होंने वोट डाला था कि भाई महंगाई कम करो। इन्होंने वोट डाला था कि जो हाउसिंग मार्केट है, जो ग्रॉसरीज है, गैसोलीन है, ये इतने ऊपर चले गए हैं कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इमिग्रेशन का मुद्दा तो जानबूझ के बनाया गया था कि मतलब सत्ता चेंज करनी है, लेकिन आज आकर अब रिपब्लिकन पार्टी को भी ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये केस अब नेशन वाइड उठ रहा है। ये केस अब एक बार फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और रिपब्लिकन पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देगा कि भाई जो वादे आपने किए थे वो पूरे करो, ना कि लोगों को डिवाइड करो। फैमिली सेपरेशन वाला एग्जाम्पल है ये दोस्तों। तो अब देखते हैं और हमें आगे क्या क्या देखने को मिलेगा, पर लग तो ऐसा ही रहा है कि इस वक्त आइस उनका बस यही है कि भाई जो मिल जाए उठा लो। अभी तो आप कैसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो नेक्स्ट दें चको फटे। काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ इस तरह के कमेंट लिखते हैं कि सर आपकी वीडियोस बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कर रही है तो अच्छा दिखाओ और जो बुरा कर रही है वो छुपा दो। आप दोनों तरफा वीडियोस बनाते हो और दिखाते हो, इसलिए हम आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं। भाई ऐसे कमेंट देखने को मिलते हैं मेरे को, तो अच्छा लगता है यार जब इस तरह के पॉजिटिव कमेंट देखने को मिलते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि दोस्तों दोनों पक्ष दिखाना है। ऐसा नहीं है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ये काम अच्छा किया तो वही दिखाई जाओ, जो बुरा किया है वो मत दिखाओ। अब ये बुरा ही है, फैमिली सेपरेशन दोस्तों।
एक फैमिली टूट गई। अब इससे बुरा और ज़िंदगी में क्या हो सकता है।